Hi everyone, welcome to the next video in this A to Z series of RBI Grade B. Today's topic is very important. Today we are going to discuss G for game plan. And in this we are going to discuss about the strategy for quant, reasoning, GA and of course English also, because this is something which is phase 1 and this is something where most of the people are shunted out. So this video is going to be very important. Till now we have discussed till F for finance and management, and going ahead in this video we are going to discuss G for game plan for quant, reasoning, English and GA. In case you want to watch all these videos, there is a playlist and the link of this playlist is given in the description of this video. Now why to watch this video? Obviously there are a lot of strategy videos related to quant, reasoning, English and GA on YouTube. How this video would be different? First of all, this would be very detailed. ऊपर ऊपर से नहीं बताया जाएगा. Strategy along with how to implement would also be told. Then this would be explanatory. I would be showing you some examples which will help you understand what I am saying in a better way. ठीक है, तो डिटेल्ड होगी, एक्सप्लेनेटरी होगी एंड इट वुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स. कोई इसमें तो मतलब तुक्का नहीं है, एग्जेजरेशन नहीं है. इट्स ऑल बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स दैट वी हैव बीन एनालाइजिंग ओवर द ईयर्स. Now this is for phase 2, but what about phase 1? Well, we have already discussed, this is for phase 1. What about phase 2? We have already discussed phase 2 preparation, that is for ESI and FM and English in our earlier videos for E and F, right? So you can again go to the playlist, the link for which is given in the description of this video, and you can access the videos for phase 2 also. So let's start with the strategy for quant, reasoning, English and GA. Let's start with quant. First of all, there is no syllabus for quant mentioned in the notification. So what are the topics to be done? So these are the topics that are on your screen right now. You can pause this video. You can note down these topics. But how come we know these topics? Because there is no syllabus. Well, we have analyzed the previous year papers, as I have been telling you again and again. Based upon that analysis, we have found out that these are the superset of the topics that are asked in your RBI Grade B examination. Now the question that might be coming to your mind is that, shall I be doing all the chapters? Are all the chapters important for me to do good in the quant section? ठीक है, तो let's have a look at the cutoffs. Now if you see the cutoffs for the past so many years, starting 2016 till 2025, the cutoff have been highest at 7.5. ठीक है, और अगर पेपर मुश्किल आ जाए तो आप इससे कम मार्क्स लाकर भी नॉर्मलाइजेशन से 7.5 पे पहुंच सकते हैं. I've seen scenarios where people have scored 4 out of 30, but due to normalization their marks will become 7.5. But that's a separate story. Let's not go into normalization. Let's assume that everybody gets the same amount of marks. ठीक है, same kind of difficulty in all the shifts. तो जो आपका कट ऑफ है वो मैक्सिमम 7.5 गया है. अब इससे ऊपर भी जा सकता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, but this has been the highest in the past 7 to 8 years that we are seeing on your screen right now. Now based upon this, if I tell you that the marks that you need to target is 7.5 out of 30, your target is not 15 or 20, and the time that is given to you in the paper is 25 minutes. You have to do 30 questions in those 25 minutes, and it is impossible to do these 30 questions in 25 minutes because the questions are of रियली हाई डिफिकल्टी लेवल. जो यहाँ पे बैंकिंग वाले बैठे हैं ना, अगर उनको लग रहा है कि मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन की है तो बैंकिंग की प्री की प्रिपरेशन या क्लरिकल लेवल की प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा लेवल है आपका आरबीआई ग्रेड बी क्वांट का. तो 30 क्वेश्चन आप 25 मिनट में नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है. एज आई हैव बीन टेलिंग यू के 7.5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर लेके आप इसका कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं. तो मेरे हिसाब से देयर शुड बी अ वेरी सेलेक्टिव अप्रोच, जिसमें आप सारे टॉपिक्स ना कर कर कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स करें, which can be time and work, time, speed and distance, percentages, ratio proportion, number series, quadratic equations, profit and loss, interest and data interpretation. So you can change the list of topics. ऐसा नहीं है कि इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, बाकी टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन आएंगे. हाँ, डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये आपको ज़रूर करना होगा. So these can be the selected list of topics that you would be doing or you shall be doing. You can change it as I have said. ठीक है, लेकिन
आपने जब इन टॉपिक्स को करना है, यू शुड बी डूइंग इट एट योर बेस्ट. यू शुड बी doing, I would say, at least 250 questions on each of these topics, and that also of different difficulty level, के लो, हाई, मॉडरेट, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर आप टाइम एंड वर्क कर रहे हैं उसमें कम से कम देयर वुड बी 15 to 20 टाइप्स जिसके आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. और आप क्वांट में 8 से 10 का टारगेट लेके चलिए आउट ऑफ 30. दैट आई थिंक कैन बी अ स्कोर. बट इफ द पेपर कम्स रियली रियली इजी, ऑब्वियसली दिस टारगेट वुड गेट रिवाइज्ड. ठीक है. और बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दीजिएगा. Knowledge is one thing, but to use that knowledge while you are anxious in your exam, and you would also have to manage your time, and there would be a lot of other factors which will impact your output. तो सेक्शनल टेस्ट देके you will get used to managing your time and managing your anxiety. ठीक है. मैंने बहुत तोड़ो तोड़ो लोग देखे हैं, वो क्वांट सेक्शन में बिखर जाते हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अडाप्ट टू द रियल टाइम सिचुएशन. तो बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट देने हैं हमें. और ये बुक्स हैं. ठीक है. मैंने 3 बुक्स क्यों बताई हैं, आप इन बुक्स को देख लीजिए. ये एक अरुण शर्मा की बुक है. ठीक है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट, अरुण शर्मा की ही ये डीआई की बुक है. और एक आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है. तो मैंने अलग अलग बुक्स क्यों बताई हैं. देखिए, डीआई के लिए तो ये वाली बुक बेस्ट है. बाकी जो अलग टॉपिक्स हैं डीआई के अलावा, कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे. अगर यहाँ नहीं मिलेंगे तो यहाँ से कर लेना. इन बुक्स में से सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे. बट प्लीज रिमेंबर वन थिंग, जो क्वांट में क्वेश्चंस आएंगे आपको पेपर में, यू माइट नॉट बी एबल टू फाइंड दोज क्वेश्चंस इन योर बुक्स, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इनोवेटिव तरीके से बनाए जाते हैं. जैसे कि एक टेबुलर फॉर्मेट में क्वेश्चन आया पेपर में जहाँ पे एक्स जेड वेरिएबल्स हैं, ब्लैंक्स भी छोड़ी गई हैं. I mean, these questions might be having the same logic, but when you are not used to doing such type of questions, where are variables in the table or blanks in the table, आप पेपर में ब्लैंक हो जाते हो. आपको लगता है कि यार इसको छोड़ते हैं और कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं, और सारे क्वेश्चन ही ऐसे होंगे. तो आपके बहुत सारे मिनट्स इसी चीज़ में वेस्ट हो जाते हैं कि आपको अपने तरीके का क्वेश्चन चाहिए होता है, बट वो मिलता नहीं है, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप पे बेसिक लॉजिक पे ही है क्वेश्चन, बट अगेन दिस इज बेस्ड ऑन ब्लैंक्स. तो इतना आसान नहीं होता है टू डू अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दो द कॉन्सेप्ट इज सेम व्हाइल यू आर सिटिंग इन द एग्जाम. सो प्लीज बाय सम क्वालिटी टेस्ट सीरीज जहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और आप उन तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके यू कैन बी सुपर रेडी फॉर द एग्जाम. नाउ कमिंग टू द रीजनिंग पार्ट, रीजनिंग का भी भैया सिलेबस नोटिफिकेशन में है नहीं. वी हैव सीन दी प्रीवियस ईयर पेपर्स, दीज आर दी टॉपिक्स जिसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. नाउ शैल यू बी डूइंग ऑल दी चैप्टर्स. अगेन द पॉइंट दैट comes to my mind at least is you are given 45 minutes in reasoning and there are 60 questions. Questions are not easy. ठीक है. आप 45 मिनट्स में आई थिंक मैक्सिमम 30 to 35 क्वेश्चंस ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे. तो मैं तो ये बोलूँगा अगेन, कीप अ सेलेक्टिव अप्रोच, क्योंकि कट ऑफ भी अगर आप देखें रीजनिंग में 15 से ज़्यादा नहीं जा रही है इतने सालों में. ठीक है, पेपर आसान आ गया तो शायद 20 चली जाए, 25 चली जाए, बट आपको कोई 40 मार्क्स नहीं स्कोर करने हैं आउट ऑफ 60. दी डिसेंट टारगेट वुड बी 20, 30. इफ द पेपर इज ईजी से 35, बट ईजी आ नहीं रहा है बहुत सालों से, तो 20 से 25 के बीच में आई वुड बी सेइंग इट्स अ रियली गुड स्कोर. सो दी सेलेक्टिव अप्रोचेस. ठीक है. सबसे पहले तो आप इन टॉपिक्स को कर लीजिए, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, इनइक्वालिटी. ठीक है. अब ये टॉपिक्स में से आई वुड से देयर वुड बी अराउंड 25 to 30 मार्क्स ऑफ योर पेपर से. बाकी आएंगे पजल्स, इनको छोड़ना नहीं है, बट डोंट स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट डू दिस बिकॉज इन एग्जाम दे कैन बी मोर स्कोरिंग, or at least they will not destroy your time, because I've seen a lot of people who in the exam start with puzzle, they are not able to solve any puzzle in the first 15 to 20 minutes and they are lost. तो हम पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे, एग्जाम में भी पहले हम ये क्वेश्चन उठाएंगे फिर ये क्वेश्चन उठाएंगे. एंड द टारगेट स्कोर इफ द पेपर इज एज यूजुअल डिफिकल्टी लेवल 20 out of 25 और 20 to 25 या फिर 25 to 30 इज अ गुड स्कोर आउट ऑफ 60. ठीक है. बहुत आसान आ गया तो आई डोंट नो व्हाट वुड बी द लिमिट. ठीक है. और सेक्शनल टेस्ट बहुत दीजिए, और जो भी चैप्टर्स कीजिए उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के. और ये बुक्स हैं रीजनिंग की. ठीक है. ये आर एस अग्रवाल की है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये लॉजिकल रीजनिंग है.
और ये कैट की वही बुक है जो मैंने पहले बताई थी, तो एक आधा टॉपिक शायद इन बुक्स में ना मिले, वो आपको इसमें मिल जाएगा। बट दीज आर दी टू मेन बुक्स जहाँ से आपको मैक्सिमम टॉपिक्स करने हैं। और इसमें भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो शायद बुक में ना हो। अभी रिसेंटली व्हाट आई हैव सीन इज दैट दे हैव स्टार्टेड पुटिंग पजल्स वेयर द नंबर ऑफ पर्सन्स इटसेल्फ आर नॉट नोन। नहीं तो पजल स्टार्ट होता है ना दैट देयर आर 5 पीपल, देयर आर 7 पीपल, अब क्या हो रहा है दैट अ सर्टन नंबर ही नहीं पता है भैया, नंबर भी आपको ही ढूंढना है। सो दीज टाइप ऑफ पजल्स कैन बी रियली risky, these can be really challenging for you guys to solve if you are not used to solving them. Now coming to the English में देखिए क्वेश्चंस आपको एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, डबल फिलर्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स पे आएंगे। बट नाउ these are not something that you can learn directly. For this you would have to learn certain skill, जिसमें ग्रामर फर्स्ट है, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, कंडीशनल टेंसेस एंड ऑल दिस, ये आपको सारे करने चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी जो आपकी रीडिंग कर कर आएगी, एंड वोकैबुलरी। when you will learn these three skills, this will automatically come to you. That is what I feel, but this is a very long process to learn grammar and build comprehension. From a shorter term perspective, if grammar seems to be time consuming for you, you can just do reverse engineering where you can focus on mocks and sectional tests. बहुत सारे mocks दो, बहुत सारे sectional tests दो, देखो किस तरह के questions आते हैं, क्या आपकी strength है, क्या आपकी weakness है। ये कुछ बुक्स हैं, अगर आपको ग्रामर सीखनी है तो रेन एंड मार्टिन इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। अगर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है देन मे बी ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी एंड वर्ड पावर मेड इजी विच इज़ वेरी गुड फॉर वोकैबुलरी। ठीक है, और इसमें भी जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं यू विल नॉट फाइंड देम इन दी स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे कि ये मैच दी कॉलम आए हैं दैट यू हैव टू मैच दी सेंटेंस विच ग्रामेटिकली मेक सेंस इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बुक्स में तो नहीं मिलेंगे। द यूजेज ऑफ प्लेन वर्ड विच इज करेक्ट, यू हैव टू फाइंड इट। again you would have to enroll into some quality test series so that you get access to these type of questions. Now coming on to the general awareness, बहुत वास्ट है, इसका कंप्लीट कवरेज इम्पॉसिबल है। नेवर एवर टारगेट कि मैं 100% ऑफ जीए करके जाऊंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब एरिया वाइज क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कुछ एरियाज हैं विच आर आस्क्ड इन योर एग्जाम: स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, फाइनेंस करंट अफेयर्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, normal current affairs and static. I'll explain all these areas and this is their respective weightage. देखिए, अब एक तरीके से अगर आप फाइनेंस के करंट अफेयर्स ही देखें इंक्लूडिंग आरबीआई नोटिफिकेशंस, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 30 मार्क्स विच इज काइंड ऑफ इवन मोर देन आई वुड से it's near about 40% weightage। 80 में से अगर 30 मार्क्स के फाइनेंस करंट अफेयर्स आते हैं तो दिस इज 40% वेटेज ऑफ फाइनेंस करंट अफेयर्स एंड आरबीआई नोटिफिकेशंस, एंड दिस इज अ रीसेंट चेंज। अर्लियर ईएसआई करंट अफेयर्स एंड नॉर्मल जीए, इनका वेटेज ज़्यादा था, यहाँ पे शायद 12 से 15 आता था, यहाँ पे भी कुछ 25 से 30 आता था, बट नाउ दिस हैज गॉट रिड्यूस्ड एंड इंस्टेड दे हैव इंक्रीज द आरबीआई नोटिफिकेशंस एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेजर चेंज शिफ्ट देखने को मिल रहा है that they are going more towards RBI notifications. Over the last 3-4 years their weightage is consistently increasing. But anyways, now these are the common areas और इनको करने के sources ये वाले हैं। Schemes आपको PIB से पढ़नी है, रिपोर्ट्स आपको पीआईबी पे अगर कोई रिपोर्ट आती है वहां से, नहीं तो हिंदू न्यूज़पेपर से, इसको नोट कर लीजिए। आरबीआई नोटिफिकेशंस आरबीआई वेबसाइट से, फाइनेंस करंट अफेयर्स आपको लाइव मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड में से पढ़ने हैं, ईएसआई करंट अफेयर्स हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी वेबसाइट से। ठीक है, जो नॉर्मल करंट अफेयर्स आई विल एक्सप्लेन इन अ व्हाइल व्हाट दीज आर, हिंदू न्यूज़पेपर में से पढ़ सकते हैं, और स्टैटिक पार्ट विच इज काइंड ऑफ कैन बी कवर्ड थ्रू योर फेज 2 सिलेबस इटसेल्फ। और जो मैंने आपको अभी सोर्सेज बताए हैं, ठीक है, मैंने आपको 5 सोर्सेज बताए हैं। पीआईबी इज 1, हिंदू न्यूज़पेपर इज 2nd, आरबीआई वेबसाइट इज 3rd, लाइव मिंट इज 4th एंड बिजनेस स्टैंडर्ड इज 5th। इफ आई शो यू, पीआईबी हैज बीन ट्रेडिशनली द सोर्स जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। अराउंड 21 लास्ट ईयर आए थे 2024 में। देन आरबीआई वेबसाइट
से भी जो मैंने बोला, ये 18 क्वेश्चन ये मोस्टली दे आर रिलेटेड टू आरबीआई नोटिफिकेशंस। बाकी आपके फाइनेंस करंट अफेयर्स ज़्यादा लाइव मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड से आते हैं, और ईएसआई करंट अफेयर्स हिंदू से आते हैं। अगर मैं इन 5 सोर्सेज को मिला लूँ, ठीक है, तो आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट माई 65 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 फ्रॉम दिस 5 सोर्सेज विच आई हैव टोल्ड यू। आप सोच रहे होंगे सर बिजनेस लाइन और इकोनॉमिक टाइम्स क्यों नहीं पढ़ना है? पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, बट so many sources you will not be able to read and retain because there would always be paucity of time. So let's read something which gives us the maximum output from our time. तो उसके लिए मैं ये 5 sources recommend करूंगा, और मैंने डिटेल में बता दिया है कौन सी sources से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। अब अगर आप सोर्सेज को खुद नहीं पढ़ सकते हैं, बिकॉज दैट माइट बी टाइम कंज्यूमिंग, जैसे पीआईबी को जाकर खुद से पढ़ना might be very challenging because there is lot of data, lot of articles to read them, to filter the data, then to make your own notes can be really challenging. तो कुछ compiled magazines आप पढ़ सकते हैं various institutes की. I can tell you about EduTap. जैसे EduTap में we have different compilations catering to all these areas. For schemes we have SchemeStep, जहाँ पे हम पूरा PIB छानते हैं और schemes filter करके आपको देते हैं. रिपोर्ट्स के लिए वी हैव रिपोर्ट स्टेप, ऑल दी रिपोर्ट्स आर क्यूरेटेड हेयर. आरबीआई नोटिफिकेशंस के लिए वी हैव आरबीआई न्यूज स्टेप, एंड फॉर द लास्ट 3 दैट इज फाइनेंस, ईएसआई एंड जीए करंट अफेयर्स वी हैव करंट टैब. तो ये चारों एरियाज में चारों मैगजीन्स के थ्रू, चारों कंपाइलेशंस के थ्रू हम ये सारे एरियाज कवर करते हैं, विच helps you to read everything at one single place. There is no need to search anything or find anything or to make your own notes. बट ये आपकी चॉइस है, आप सेल्फ रीड भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम आपको हैंडल करना पड़ेगा. और जर्नल अवेयरनेस में एक चीज आपको समझनी होगी, दैट यू नीड टू फॉलो 3/5 रूल ऑफ करंट अफेयर्स. Now what is this 3/5 rule of current affairs? बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स वी शैल बी रीडिंग. मैं बहुत सालों से एनालाइज कर रहा हूं, अगर आप 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स कर जाएं, whether that is schemes, whether that is reports, RBI notifications, ESI, finance current affairs, any category, if you do 5 months of current affairs preceding your exam, you are good to go. और मैं इसको 3/5 इसलिए बोलता हूं, for some reason if you are still not able to do 5 months of current affairs, at least go with 3 months of current affairs. Below that I think will not work. और इसका प्रूफ है, ये 2024 का डेटा है. अब आप इसमें देखिए 7th 8th 9th मंथ में से कितने कम क्वेश्चन आए, 2 2 1 1 1, और ज्यादा क्वेश्चन कहाँ आए हैं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 मंथ, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 मंथ, 3 मंथ्स. यहां से ही आप देख लीजिए अराउंड 55 क्वेश्चंस आ गए हैं 3 मंथ से. 4th और 11th को मिला देंगे तो ये अराउंड 66 हो जाएंगे. ये बहुत अच्छा वेटेज है. आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चंस तो मेरे मिस हो गए. भाई हो गए, अगर आप ये भी पढ़ने लग गए इसके चक्कर में ये भी नहीं होंगे अच्छे से. तो फोकस ऑन लिमिटेड पार्ट बट डू इट वेल, दैट इज द मंत्र, ठीक है. अब स्कीम्स में क्या पढ़ना है? स्कीम्स में देखिए पेंशन रिलेटेड स्कीम्स पढ़ सकते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, या फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड स्कीम से भी मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखे हैं, जैसे कि पीएम जनधन योजना, या इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड मत्स्य संपदा योजना, पीएम किसान योजना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड नेशनल अप्रेंटिसशिप, मनरेगा, आरबीआई की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है. फिर सोशल इश्यूज, जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे कि हेल्थ, भारतीय जन आयुषी परियोजना, विमेन गर्ल्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वाधार गृह, एजुकेशन, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है. तो इन एरिया से भी स्कीम्स पूछी जाती हैं. या फिर अदर एरियाज जैसे कि सोशल जस्टिस, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, एनवायरनमेंट, इनसे भी स्कीम पूछी जाती हैं. और जो मैंने ये सारे एरियाज आपको बताए हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन टेकन फ्रॉम योर फेस टू सिलेबस. जैसे कि सोशल इश्यूज की मैं बात करता हूं तो जेंडर इश्यूज यहाँ पे है, जो मैंने आपको विमेन और गर्ल्स बताया है, ठीक है. एजुकेशन और हेल्थ कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस का पार्ट है. फिर अर्बनाइजेशन आपका यहाँ पे है, माइग्रेशन आपका यहाँ पे है, पॉवर्टी आपका सिलेबस में यहाँ पे है. सो ऑल दीज टॉपिक्स दैट आई हैव टेकन दे आर मोस्टली फ्रॉम योर फेस टू सिलेबस ऑफ आरबीआई. हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि आरबीआई स्कीम्स यहाँ पे नहीं दिखेंगी, बट इससे आता है, ठीक है. क्वेश्चन पेंशन
financial inclusion, these might not be part of your ESI phase 2 syllabus, but these kind of questions are asked in your exam. तो आपको schemes लास्ट 5 मंथ्स की करनी है जो पीआईबी पे न्यूज़ में है, मतलब पीआईबी में जो बार बार दिख रही हैं एग्जाम से 5 महीने पहले, वो स्कीम्स करनी है. क्वेश्चंस या तो वन लाइनर आएंगे या स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं, तो स्कीम्स को अच्छे से पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है. रिपोर्ट्स की बात करूं तो ये 9 एरियाज हैं जहां पे आपको फोकस करना है. इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, स्पेशली इफ दे आर रिलीज क्लोजर टू योर एग्जाम. देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई, annual report by RBI, currency and finance report by RBI, report on trends and progress in the banking sector by RBI, world development report by World Bank, world economic outlook by IMF, और कुछ रिपोर्ट्स जो आपके फेज 2 के सिलेबस से रिलेटेड हैं, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, एनवायरनमेंट, पॉवर्टी, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, ये रिपोर्ट्स भी आपको पढ़नी है. Again, the areas that I've told you is not something that I made it by myself. Most of these are mentioned either in your syllabus or suggested reference material in the notification. आपकी नोटिफिकेशन में सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल है, जाकर देखिए, वहां पे ये सारी रिपोर्ट्स लिखी हुई हैं, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये रही, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ये रहा, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट ये रही, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया ये रहा, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट ये रही. ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट्स जो मैंने पहले 8 पॉइंट्स में लिखी हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन टेकन फ्रॉम दी सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल ओनली. और जो ये वाली रिपोर्ट्स हैं, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरनमेंट, पॉवर्टी, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, अगेन दीज आर काइंड ऑफ रिलेटेड टू योर सिलेबस, जैसे पॉवर्टी, ठीक है, एनवायरनमेंट, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन. सो ऑल दिस इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू योर सिलेबस इटसेल्फ. और हमें इसको पढ़ना कैसे है, रिपोर्ट्स को, जो पॉइंट 9 की रिपोर्ट्स हैं ये वाली, ठीक है, वॉट एवर रिपोर्ट्स हैव बीन रिलीज इन लास्ट 5 मंथ्स, राइट, एंड दैट टू फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेचर, मतलब रिलीजिंग बॉडी जिसकी कोई बड़ी बॉडी हो, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यूएन, यूनिसेफ, डब्ल्यूटीओ, ओईसीडी, एडीबी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, सेबी, नीति आयोग. मैक्सिमम क्वेश्चंस इनकी रिपोर्ट्स जो ये रिलीज करते हैं उनमें से आएंगे. ठीक है, और जो बाकी ये 8 रिपोर्ट्स मैंने बताई हैं, ये जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट होगी, चाहे वो 6 महीने पहले आई है, वो आपको पढ़नी है. एंड वॉट एवर रिपोर्ट यू आर डूइंग, जस्ट रीड द समरी ऑफ द रिपोर्ट. देयर इज नो नीड टू रीड द एंटायर रिपोर्ट फॉर फेज 1, दैट वुड बी टू मच. तो हमें सिर्फ समरी पढ़नी है. अगर रिपोर्ट में ही कोई समरी है वो पढ़ लेंगे, नहीं तो उस रिपोर्ट की समरी न्यूज़पेपर्स में आती है, हम उसको पढ़ेंगे. और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिलेटेड है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई थी, ये नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई थी. ये सारे एरियाज आप देखिए उन रिपोर्ट्स में से हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने रिलीज की हैं. नेक्स्ट इज आरबीआई नोटिफिकेशन. सो आरबीआई नोटिफिकेशंस आर बेसिकली द रेगुलेशंस which are made by RBI from time to time. They are available on the RBI website. Almost all the RBI notifications are important. क्वेश्चंस या तो बहुत फैक्चुअल आएंगे, कभी कभी इन डेप्थ भी आते हैं, तो हमें फैक्चुअल डिटेल्स पे फोकस करना है, ना कि टेक्निकल टर्म्स पे. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, RBI has released bulk deposit limit for a scheduled commercial bank, regional rural banks and small finance banks. What is the minimum limit? फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल है. ठीक है, नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टाइटन्ड नॉर्म्स रिलेटेड टू पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टेंस बाय हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट ड्यूरेशन, कितने महीने, फैक्चुअल. तो फैक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए फैक्ट्स पे फोकस करना है. इवन इफ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर्टन टेक्निकल टर्म्स, दैट्स ओके, ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम, जस्ट फोकस ऑन फैक्ट्स. फाइनेंस करंट अफेयर्स में सेबी, इरडाई, पीएफआरडीए की रेगुलेशंस बहुत अच्छे से करनी है. देन फाइनेंस की न्यूज़ जैसे कि जीडीपी प्रोजेक्शंस, रेपो रेट सेटिंग्स, इन्फ्लेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एनी अदर फाइनेंस न्यूज़ विच इज रिलेटेड टू योर फेज 2 टॉपिक्स सच एज डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्टॉक मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. आई जस्ट शो यू एन एग्जाम्पल. जैसे मैंने बोला था कि सेबी की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं कि सेबी ने ठीक है कुछ थ्रेशोल्ड इंक्रीज किया था, ठीक है, डीमेट अकाउंट का 2 लाख से, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है. फिर ये भी
सेबी का ही क्वेश्चन है एज फार एज आई रिमेंबर, कि एफपीआई के रिलेटेड कोई रेगुलेशन आया था सेबी का। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। मूविंग टू ईएसआई करंट अफेयर्स अगेन, GDP projections, repo rate settings and inflation figures all are important. Apart from that, ESI के जो सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जैसे कि रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सेट्रा, उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई समिट होता है इंडिया, श्रीलंका, चाइना का, विच इज़ अ पार्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, देन ऑन दैट समिट देयर कैन बी क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर एग्जाम। ठीक है, फिर नॉर्मल करंट अफेयर्स हैं जिसको मैं एक्चुअल में जीए बोलता हूँ, कि एक्चुअल जीए तो ये है जिसमें नेशनल न्यूज़ आ गए आपके, एमओयूज, समिट्स, इंटरनेशनल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, डिफेंस, सम इम्पॉर्टेंट डेज इन न्यूज़ जैसे कि कोई इम्पॉर्टेंट डे था, फूड डे था, एनवायरनमेंट डे था, पर्सन्स इन न्यूज़, कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कोई ऑब्चुरीज हुई हैं, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक एंड स्पेस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, environment and books and authors. These are the main areas from where your GA questions can be asked. Now they can be very direct also. This is direct actually and this is indirect. जैसे कि to boost participation of small investors in the security market, SEBI has increased the threshold of basic service demat account to dash from current 2 lakh. ठीक है, तो ये सीधा था जो न्यूज़ की हेडिंग से ही होता था कि सेबी ने 10 लाख कर दी है लिमिट, बहुत सीधा क्वेश्चन था। देयर कैन बी इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो, जैसे कि ये क्वेश्चन आया था कि अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल किस ईयर में जीता था, 2008 में इसका आंसर था। द न्यूज़ इज वेरी ओल्ड कि अभिनव बिंद्रा ने कब जीता था, बट द न्यूज़ जिसके कारण ये क्वेश्चन आया था वो ये थी कि अभिनव बिंद्रा अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू ओलंपिक मूवमेंट, ये न्यूज़ थी। And within this news they have mentioned के गोल्ड मेडलिस्ट इन 2008 थे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, जिसके कारण ये क्वेश्चन आपका आया था, वो क्वेश्चन नहीं था, उसके अंदर की जो न्यूज़ थी कि अभिनव बिंद्रा ने 2008 में मेडल जीता था, ये उसके अंदर मेंशन था, उस पे क्वेश्चन आया था। So this is a kind of indirect question where instead of focusing on the main headline के अभिनव बिंद्रा को कौन सा अवार्ड मिला है, the question was कि अभिनव बिंद्रा हैं कौन। तो इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर आप न्यूज़ को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ये क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। और स्टैटिक पे भी क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली दे आर रिलेटेड टू योर नॉलेज ऑफ फेज 2 टॉपिक्स इन ESI एंड बैंकिंग, जैसे कि ये आपके फेज 2 का सिलेबस है फाइनेंस का। अगर आपने ये समझ लिया है, ये स्टैटिक क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर नॉट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपने यहाँ पे फंक्शंस ऑफ RBI पढ़ा होगा, या बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया पढ़ा होगा, या स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ा होगा, ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो इसके लिए अलग से तैयारी नहीं करनी है, फेज 2 का सिलेबस अगर हम फेज 1 तक कवर कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं बैंकिंग और SSC एस्पिरेंट्स को बोलूँगा कि कई बार सब्जेक्ट्स देख के ना लगता है कि यार ये तो हम कर लेंगे। आप इतना याद रखिएगा कि क्वांट रीजनिंग का लेवल बहुत हाई है और GA अलग ही है। RBI नोटिफिकेशंस, फाइनेंस, करंट अफेयर्स ये SSC और बैंकिंग में नहीं आते हैं और यहाँ पे बहुत इन डेप्थ आते हैं। ठीक है, ESI करंट अफेयर भी जो आपको अगर बैंकिंग में आ रहे हैं बहुत सिंपल आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत इन डेप्थ आ रहे हैं, इनफैक्ट रिपोर्ट्स भी बहुत इन डेप्थ आ रही हैं। तो इसके लिए डिफरेंट प्रिपरेशन चाहिए। द सेम प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प, डोंट वेस्ट योर टाइम, आइदर डू अ सेपरेट प्रिपरेशन और जस्ट लीव योर प्रिपरेशन फॉर RBI ग्रेड B। सो विद दिस वी कंप्लीट दिस वीडियो। आई होप कि आपको सारा गेम प्लान समझ आ गया होगा कि क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और GA को किस तरह से प्रिपेयर करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे फेज 1 को क्रैक करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।